Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? With our new topic, I am here Anam Fida. We are going to study about Keynesian multiplier in macroeconomics. Today we will study about the Keynes multiplier. Who is Keynes? You all of know about the Keynes and you all of know about the classicals. After classicals, new classicals came and in which the Keynes is included. Classicals that was in not favor of Govit, while the Keynes was in the favor of intervention of Govit. It is the main difference. While the classical said that supply is the main thing, while the Keynes said that demand is the main thing. Classicals was supply sider and Keynes was demand sider. In today we will study about the Keynesian multiplier. First of all, I will describe about what is the multiplier. Multiplier is the thing in which we will study that when we use endogenous variables, endogenous or any other variable, we will say that in multiplier when increase or use of one multiplier, one variable will cause to increase the other variable. यानी इसमें ये बात कर लें कि एंडोजिनस वेरिएबल्स एंड अदर इज द एक्सोजिनस वेरिएबल्स. Endogenous variables, one unit increase will cause to increase exogenous variables more than 1 unit or 1 or anything else. Here we are skipping out the Keynes, we are just describing about the multiplier, that what is multiplier. Multiplier is the increase in endogenous variables will cause to increase in the exogenous variables. What is the endogenous variable? Endogenous variable we will take as this is an boundary in which we can say that independent variables, for example consumption, investment or Govit consumptions are included, and the other is exogenous or dependent variable that is without boundary and other than boundary, यानी कि जो endogenous variable है वो इसके अंदरूनी variable है, ये endogenous variable है. It will cause to increase the exogenous variable. Exogenous variable is here GDP. Our GDP growth is the exogenous variable. We are considering just as we increase or change in these endogenous variable, it will cause to increase how many times exogenous variables. The word how many times, it is the multiplier. These times are the multipliers, that if $1 change in consumption will cause to $10 change in GDP growth, that 10 times is the multiplier. These how many times are the multipliers. Okay, and today we will discuss about the Keynes multiplier, and the other multiplier is the investment multiplier. We will inshallah discuss about that, and these both are the different things but move together along with each other. Okay, यहाँ हम इसकी बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड. हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं एग्रीगेट डिमांड पर. What is the aggregate demand? It is the demand at the economy level, at the country level, at aggregate level. Aggregate demand, for example, is components of the aggregate demand are the consumption plus investment plus Govit, and its dependent variable was the Y that we take for the output or GDP growth. It is the output or GDP growth, and these are the independent variables. Okay, we are moving towards the Keynes multiplier. Keynes multiplier said that 1 unit increase in consumption, private consumption or investment or Govit consumption will cause to increase more than 1 unit increase in output or GDP growth. वो ये कह रहा है कि जब हम लोग इसमें $1 का इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, $1 की इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो ये मोर देन $1 इसमें काज बनेगा, मोर देन $1 इसमें आ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज कर जाएगा.
more than $1. ओके, इट विल इंक्रीज मोर देन $1 आउटपुट। और इसमें अब केन्स मल्टीप्लायर, केन्स जो है ये हमारे पास याद रखें डिप्रेशन के बाद आया है, ये न्यू क्लासिकल में है और इसकी ये जो थ्योरी है 1931 में थी। और इससे पहले ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो आलमी बहरान आया था उसमें जो था गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं थी, सप्लाई वैसे की वैसे रखी रह गई थी, गवर्नमेंट ने कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं की थी क्योंकि क्लासिकल्स ने कहा था गवर्नमेंट इंटरफेयर ही ना करे। और वो सारे सप्लाई साइडर थे, उनने कहा था सप्लाई खुद ही अपनी डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, डिमांड क्रिएट नहीं हुई थी, सप्लाई वहीं की वहीं रह गई थी, चीज़ें गल सड़ गई थी और बैंक बंद हो गए थे, बैंक बैलेंसेस ज़ीरो, और ना लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, ना किसी ने वहाँ से बैंक से लोन लिया, ना ग्रांट्स आई, ना ही कोई चीज़, तो पूरा आलमी बहरान आ गया था। तो उस टाइम गवर्नमेंट की ज़रूरत पेश आई थी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये केन्स ने कहा था और केन्स ही ये कह रहा है। केन्स ने फिर यहाँ पर दिया, केन्स अपना मल्टीप्लायर दिया कि कितने मल्टीपल चेंजेस जो है वो इकोनॉमी में आएंगी। और इस चीज़ को यूँ समझ लें कि ये हायर करने के लिए कह रहा है कि अगर आप $1 की इन्वेस्टमेंट करती हैं, गवर्नमेंट की तरफ इशारा देते हुए कह रहा है, तो आपकी जो इनकम है इसमें मोर देन $1 इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अब इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करती चलूँ, दैट इज़ द MPS। ये है कि हमारे पास जो MPC और MPS है, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। इसमें ये है कि अगर हम ऑलवेज ये बात आपने याद रखनी है कि MPC आपका इतना एक होना चाहिए कि वो जब 1 में से माइनस करें तो MPS इक्वल आ जाए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू। यूनिवर्सल लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हमने 1 माइनस 0.75 ले लिया इज इक्वल टू 0.25, तो ये हमारे पास आना चाहिए। और इसी तरह से आपकी ऐसी वैल्यूज़ हों, अगर इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको यूँ डिस्कस करें कि 1 इज़ इक्वल टू MPS प्लस MPC, तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि ये जो MPS और MPC की ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो 1 के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल हम इन्हें 0.25 नहीं, सॉरी, इसमें 5050 भी कर सकते हैं। 50 प्लस 0.50 इज इक्वल टू 1, इसमें ये बात भी कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि इसमें MPS को MPC को जब कलेक्ट करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। और अब हम यहाँ से मूव करते हैं केनेजियन मल्टीप्लायर की तरफ। केनेजियन मल्टीप्लायर में ये फार्मूला है फाइंड आउट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 ओवर MPS। यहाँ पर MPC ले लें या फिर MPS को डाल लें, एक ही बात आएगी, क्योंकि अगर MPS लेना है तो उसको 1 में से माइनस नहीं करना, अगर MPC लेना है तो उसे 1 में से माइनस करना है। ओके, 1 अगर हम ले रहे हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट हो गई है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि $1 की इन्वेस्टमेंट लगाकर हमारे पास कितना एक आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और MPC जो हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो हमारे पास 0.75 है। इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, डायरेक्ट ही आ जाएगा 0.25। एंड व्हेन वी विल डिवाइड 1 विद 0.25 वी विल टेकन आउट 4। ये चीज़ आपके पास प्रूफ आ गई है कि $1 को इन्वेस्ट करने से आपके पास GDP ग्रोथ में $4 या फिर 4 यूनिट्स इंक्रीज कर जाते हैं।
इसी तरह से आप लोग इसमें पुट कर लेंगे, अपने मुताबिक ही वैल्यूज़ इसमें पुट कर लीजिएगा कि कितना की इंक्रीज़ कर जाता है। वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, MPC की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फिर उसके लिए ये है कि 0.50 का भी आप यूज़ करके देख सकते हैं कि MPS आपका ऑटोमेटिकली फिर 0.50 ही हो जाएगा कि इसके इंक्रीज़ करने से या चेंज करने से फिर हमारे पास क्या आया है। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि वैल्यू आपने बाउंड्री के अंदर रहते हुए लेनी है, यानी कि 1 के अंदर रहते हुए कि 1 जो है वो इक्वल हो जाए MPC और MPS के। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75। अच्छा, अब केन्स के मल्टीप्लायर की अगर हम ये बात करें, केन्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट का लिंक होना चाहिए। गवर्नमेंट के बगैर इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है और इसके इंटरवेंशन ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रेड साइकिल रिवाइज़ करवाती हूँ, जिसमें हमने ये देखा था कि जो है कंट्री में डिप्रेशन और रिसेशन और बूम आता रहता है। तो केन्स इस चीज़ की इसमें है कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं डिप्रेशन में, हमारे पास हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, अब गवर्नमेंट यहाँ इंटरफेयर करे और गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करे डिप्रेशन में। जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो ये रिसेशन की तरफ ऊपर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और ये बूम की तरफ आ जाएगा। केन्स ये बात करता है। और उसके बाद अगेन साइकिल मूव तब करेगा जबकि गवर्नमेंट के पास अपनी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी या फिर ऐसा 1 साल में ये साइकिल कंप्लीट होता रहता है ये। और इसमें अगर केन्स मल्टीप्लायर में हमने ये देखा है कि अगर $1 यूनिट हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर अब हम बात करें कि कंज्यूम किया, कंज्यूम करने से भी आपकी इकोनॉमी जो है GDP ग्रोथ है इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी कंट्री का मेन पर्पस क्या है? वेलफेयर, वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर अचीव करने के लिए कोई भी कंट्री तमाम तर पॉलिसीज़ अपनी बना रहा होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी में कि इसको अचीव करने के लिए अगर हमने $1 जो है इन्वेस्ट किया है, तो हम ये बात करेंगे इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ होती है किसी भी कंट्री में तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट लगाई है, कोई बिजनेस हो रहा है, एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए ना, तो वहाँ ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ कर जाती है। और जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर जाती है कंट्री की तो प्रॉस्पेरिटी, लोगों की इनकम इंक्रीज़ कर जाती हैं और जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ कर जाती है तो एग्रीगेट लेवल पर कंट्री में डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है और जब डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है तो फिर हम बात करते हैं कि इनकम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है या फिर बिजनेसमैन जो लोग भी होते हैं और उनका जो बिज़नेस होता है वो प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर की तरफ मूव कर रहा होता है। जब ये चीज़ें दोनों साथ साथ चल रही होती हैं तो उस टाइम को ये कहेंगे कि बूम होता है कंट्री में और डिप्रेशन का कोई ख़तरा नहीं रहता और इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। और केन्स की इस बात के साथ मुत्तफिक किया जाए कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बगैर फिर यही कंडीशन होती है जो कि ग्रेट डिप्रेशन में हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़, इसको अब हम डायग्राम पे अगर शो करें, ये देखें $1 के इंक्रीज़ से आपके पास $4 का इंक्रीज़ आया है, इसे हम डायग्राम में शो करते हैं। ये डायग्राम हमने जो पहले भी यूज़ की थी एग्रीगेट डिमांड के लिए भी, प्राइस और यहाँ पर GDP ग्रोथ हम लेंगे पर रियल टर्म्स में। $2 प्राइसेस है, फॉर एग्जांपल एक टाइम में यानी कि $2 चल रहा है और इस टाइम में हमारी जो GDP ग्रोथ रेट है वो है, GDP हमारे पास 20 है। अब यहाँ इस तरफ देखते हुए कि हम लोगों ने $1 का गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है और उस टाइम प्राइसेस इंक्रीज़ होकर 3 हो जाती हैं या 4, 5 जो भी। जब $1 इंक्रीज़ कर दिया है उसके बाद आपके पास इंक्रीज़ होकर 4 यूनिट इंक्रीज़ हुई है जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया 24 हो जाएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बाकी 24% हो जाएगा। और अगर हम इसके बाद ये देखें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड हमारे पास AD0 ले लें
और जब हम इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ बात कर लें AD1 ले लें, इंक्रीज़ कर गया, 4 यूनिट इंक्रीज़ कर गया। अब इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मज़ीद आगे $1 की इन्वेस्टमेंट और अगर इंक्रीज़ कर दी जाए, 4 यूनिट और इंक्रीज़ हो जाए, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड लेवल है वो AD2 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर 28 हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है इसमें। और जो भी मतलब हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है इंक्रीज़ हो। अभी मैंने बात किया था कि अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है तो जाहिर है वो पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में ही आ जाएगा ना। तो इसमें हम लोग ये बात भी कर सकते हैं कि कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई है। देखिए वो वाले कंपोनेंट आप लोगों ने जेहन में रखने हैं जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर आते हैं, y = C+I+G, वो वाले कंपोनेंट्स उसमें आएंगे और वो इंक्रीज़ होते जाएंगे उसके साथ ही। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि केन्स कह रहा है कैसे कैसे गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर सकती है और इस तरह से करनी चाहिए। केन्स इस चीज़ की राय दे रहा है और इस चीज़ की फेवर में है। और आज का टॉपिक हमारा इसके साथ ही कवर होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम इन लोग इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मुतालिक डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग साथ के साथ अपने लेक्चर्स को कवर करते रहिएगा और ये काम ज़रूर करना है जो मैंने आपसे कहा है कि क्लासिकल को कंपेयर करना है न्यू क्लासिकल के साथ या फिर केन्स के साथ, कि केन्स और क्लासिकल के आपस में क्या इंटरेक्शंस थे, वो एक दूसरे के खिलाफ क्यों थे या क्या वजह थी, या फिर इनकी कौन सी बातें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इसमें कोई बात इनकी एक जैसी तो आ ही नहीं रही होती ना, वो चेंज ही होती है। और दूसरा फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसे केन्स के साथ देख लीजिएगा। और एक पिटफॉल की हम यहाँ पर बात करते हैं। केन्स में एक पिटफॉल है जो है कि केन्स कह रहा था कि गवर्नमेंट की जो है ना टैक्सेशन इंक्रीज हो जाए। इसने कहा कि गवर्नमेंट जो है ना अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर दे ताकि ना जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन इसने ये बात क्लियर नहीं की। ये हमारे पास पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स यानी कि हम इस चीज़ के खिलाफ आए और लोग भी आए, दूसरे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने केन्स का ये पैराडॉक्स उठाया कि ग्रोथ कौन सी इंक्रीज करनी है, टैक्सेशन के थ्रू करनी है या फिर स्पेंडिंग के थ्रू। अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि गवर्नमेंट किस तरह से किस तरीके से अपनी कंजम्पशन कर रही है या इन्वेस्टमेंट किस तरह से थ्रू कर रही है, किस चीज़ के थ्रू टैक्सेशन को कम कर रही है या स्पेंडिंग को बढ़ा रही है, किस तरह, ये चीज़ केन्स ने क्लियर नहीं की थी, जो कि इस थ्योरी का पिटफॉल है यहाँ पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।